nested class, we'll see this concept. What is this concept? We'll see some programs over there. Okay, why this abstract class is being used. Okay, and what is a virtual function and how we can implement it. Okay, after that we'll see what is a nested class. The nested is a process, right? We can write one class inside the another class. If you want to know about nested if else, nested while, nested for loop, the same concept will be comes over here. That is a nested क्लासेस. ओके, सो नेस्टेड क्लासेस के अंदर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, वो मैं पहले पूछूंगा. अगर आपको क्लास के बारे में सब कुछ पता है तो ठीक है, यू कैन गिव द आंसर, अदरवाइज आई विल टेल यू व्हाट इज दैट. ठीक है गाइस, आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? यस सर. ओके, सो लेट मी स्टार्ट अगेन. नाउ द टुडेज फर्स्ट कांसेप्ट इज व्हाट? अ प्योर वर्चुअल फंक्शन. Now, what is a virtual function? Virtual function that already know, we already use in inheritance. Like wherever if you want to access the super base class, okay, in different classes, so this pure virtual function will making, sorry, not virtual function, I'm talking about virtual class over there, sorry. Pure virtual function is what? If you return a same function in a base class and derived class. Okay, I think Friday we have seen this example. Virtual function means what? We have created one function and we are using that function in a different classes. Okay, but what is happening while we are creating the object of derived class. Okay, and after creating derived class and we are calling the same function name which is declared in a different classes. Okay, so what is happening over there? It will calling the derived class function. Okay, because your object is being created from the derived class. Suppose if you want to call a pure virtual function, okay, so we need to create the base class object and we can call that virtual function. Okay, now what is meaning of pure? Okay, let me give some example because these two things comes always together. ठीक है, so pure virtual function का example देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा what is abstract class. Abstract का meaning क्या होता है? We are hiding the implementation details from outsiders. What is the meaning? Hiding the implementation details from outsiders. अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है इनपुट का और दूसरा है आउटपुट का. इफ यू डोंट वांट टू शो द इनपुट फंक्शनलिटी, ये इनपुट फंक्शन के मैंने अंदर लिखा क्या है, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड देन व्हाट इज द वर्चुअल फंक्शन इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, सी सम टाइम okay, implementation of all function cannot be provided. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी implementation है functions के वो प्रोवाइड किए नहीं जाते हैं. Where in the base class, जो अपना बेस क्लास है, सपोज मेरे पास क्लास का नाम है बेस और दूसरा डिराइव्ड क्लास का. अगर मुझे बेस क्लास के कुछ फंक्शन एक्सेस करने हैं जो कि उसके क्लास के जो फंक्शन है वो इंप्लीमेंटेड नहीं है, मतलब उसको बॉडी ही नहीं है, सिर्फ क्लास का डिक्लेरेशन करके छोड़ दिया है, फिर भी ऐसे फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंप्लीमेंट करना, जो कि हम क्या करते हैं दूसरे क्लास में जाके उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं. ठीक है, तो क्या बोला मैंने? समटाइम्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल फंक्शंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द बेस क्लास बिकॉज वी डोंट नो द इंप्लीमेंटेशन. इवन वी आल्सो डोंट नो व्हाट इज इंप्लीमेंटेशन which is written inside the base class. ठीक है, ये एक सिंपल एक लाइन है जो कि क्या बोल रहा है, ऐसे बहुत से टाइम होता है कि सभी क्लास बेस क्लास के फंक्शन में उस फंक्शन को इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि दैट क्लास कंटेन ऑल नॉन इंप्लीमेंटेड मेथड, ऐसा कुछ नहीं है. सपोज 10 मेथड है उस फंक्शन में, उसमें से 5 इंप्लीमेंटेड हो सकते हैं, 6 अनइंप्लीमेंटेड हो सकते हैं, तो वो भी क्लास क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया. एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैं 2-3 कंडीशन बताऊंगा, वो आपको कंडीशन याद में रखना है. जब भी कोई इंटरव्यू में एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको वहां लिखना है या उसको एक्सप्लेन करना है. नाउ व्हाट इज दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्चुअली? लेट्स सी वन एग्जांपल. सच अ क्लास इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास. क्या बोलेंगे उस क्लास को? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे. किस क्लास को? जिस क्लास के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स है जो कि इंप्लीमेंटेड नहीं है, उस मेथड को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड. देखो एक सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं आपको. एक क्लास है जिसके अंदर, ठीक है, एक फंक्शन है जिसको बॉडी नहीं है. क्या बोल रहा हूं मैं? एक क्लास है जिसके अंदर फंक्शन है पर उसको बॉडी नहीं है, दैट इज क्लास इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. और उस फंक्शन को हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोल, क्योंकि उसका इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं. बराबर है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी, फॉर एग्जांपल लेट
द शेप बी ए बेस क्लास, मतलब आपके एक क्लास है उसका नाम शेप है, शेप मतलब साइज, ओके। एंड देन वी कैन नॉट प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ द फंक्शन ड्रॉ। मुझे एक शेप ड्रॉ करना है जो कि रेक्टेंगल हो सकता है, जो कि स्क्वायर हो सकता है, जो कि सर्कल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक क्लास है शेप, उसके अंदर एक ड्रॉ फंक्शन है जिसको बॉडी नहीं है, ये ध्यान में रखो। बट वी नो एवरी डिराइव्ड क्लास मस्ट हैव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ड्रॉ, मतलब अपने को पता होना चाहिए कि ये जो ड्रॉ फंक्शन हमने इस शेप क्लास के अंदर लिखा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, उसको बॉडी नहीं है, उसको हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है? डिराइव्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना है। समझ में आ रहा है गाइस? यस, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? सिंपल है, एक क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है जिसको बॉडी नहीं है, उसी बॉडी को, उसी फंक्शन को हमको क्या करना है, दूसरी जगह यूज करना है, तो उसको वहां आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस और नो? यस प्लीज, अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। क्या समझ में आ गया? सिंपल, दो लाइन में बताओ मुझे। एक क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन को बॉडी नहीं है, तो वो फंक्शन और वो क्लास भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और एक मैं चीज बताता हूं, जब भी हम कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। ये देखो, ये लास्ट लाइन में, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है, ये ध्यान में रखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ we cannot provide implementation detail of, ठीक है, ये तो हो गया। now similarly an animal class, एक animal class है दूसरा, this is the second example, class doesn't have implementation of move। ये एक एक्टिविटी है एनिमल की जो हमेशा मूव करते हैं एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, assuming all animals, okay, moves, ठीक है, but all animals must know how to move। पता है ना, मतलब वो मूव कैसे करते हैं वो एनिमल को पता होता है, मतलब डिराइव्ड क्लास को पता होता है कि इस मूव का इंप्लीमेंटेशन करना क्या है। एंड फाइनली द कंक्लूजन इज वाज वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है उसका हम क्या नहीं कर सकते। हेलो सर। यस सर अपूर्वा को ज्वाइन करो तो क्लास वो नहीं कर पा रही है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हो गई, हो गया। तो मैं क्या बोल रहा था, we cannot create object of the abstract classes. Now some conditions are there that I have not written over here that I want to explain you, okay। first condition, if your class is an abstract class, ये देखो, ये एक्चुअली जावा का कंडीशन है, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ हम कहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं कर रहे, ये ध्यान में रखो, ठीक है। इसे फिर भी आपको बता देता हूँ, पता होना चाहिए। इफ योर क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब उस क्लास के साथ आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट, नॉट कंपल्सरी दैट all functions inside class is an abstract, all function inside class is an abstract। इसका मीनिंग क्या है पहले का, इफ योर क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट, ये जावा का है एक्चुअली, मैं बोल रहा हूं, ये समझ में इसलिए बोल रहा हूं, जावा में कैसे होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे लिखा होता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते फिर भी, ठीक है, जावा में ऐसे होता है। ये देखो एग्जांपल, ऐसे होता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आता है उस क्लास के सामने, ठीक है। तो इफ योर क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट, it's not a compulsory that all function inside the class is an abstract, मतलब इस क्लास के अंदर सपोज 4 फंक्शन है, वो एब्स्ट्रैक्ट ही हो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट, इज एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है देन योर क्लास must be an abstract, ये कंपल्सरी है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई भी फंक्शन हो, एक फंक्शन हो या 10 फंक्शन हो, इफ अ फंक्शन, if function is an abstract, okay, inside class,
inside class, then your class must be an abstract. अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं क्लास बेस क्लास, इसके अंदर लिखा abstract void fun into bracket close, ऐसे लिखा मैंने कुछ तो कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ abstract कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा, ये कंपल्शन है, ये जावा में यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। दो समझ में आ गया? Yes guys, if your class is an abstract, then it's not a compulsory that all function inside the class is an abstract. Okay, and if the function is abstract, then compulsory your class must be an abstract. ये ध्यान रखना आपको। पिक्चर क्लियर हो गया गाइस? यस प्लीज। एक मेन चीज क्या है इसके बारे में, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम कभी भी नहीं बना सकते हो। जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट कब होगा? यस, इफ यू हैव सम अनदर एग्जांपल्स, अनदर डिटेल्स। व्हाट द डिटेल्स? अ प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल फंक्शन, दोनों का नाम एक ही है। प्योर वर्चुअल भी वही है और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वही भी, जिसके साथ प्योर और वर्चुअल कीवर्ड आता है, ठीक है। प्योर कीवर्ड नहीं है ये, प्योर एक वर्ड है जिसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वर्चुअल कीवर्ड आएगा, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इन C++। ये जो वर्चुअल फंक्शन विच वी कैन हैव इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, बट वी मस्ट ओवरराइड दैट फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास। अदरवाइज डिराइव्ड क्लास आल्सो हैव सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका मीनिंग देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे। व्हाट इज द मीनिंग? A pure virtual function, okay, in a C++ function for which we can have an implementation. इसका implementation बेस क्लास में हो सकता है, ठीक है। कैन हैव बोला उन्होंने, मस्ट भी हैव ऐसे नहीं बोला है, ठीक है। उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वी मस्ट ओवरराइड दैट फंक्शन। मतलब वो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, आपको कंपलसरी ओवरराइड किधर करना है? डिराइव्ड क्लास में करना है। अगर आपने उसका डिराइव्ड क्लास में क्या बोलते हैं, उसको ओवरराइड नहीं किया, उसको बॉडी नहीं दिया, तो क्या होगा? आपका डिराइव्ड क्लास में क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आपका बेस क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट है ही, तो आपका डिराइव्ड क्लास में क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर डिराइव्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसका ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, तो आपके पूरे प्रोग्राम का कोई भी यूज नहीं होगा। व्हाट वी आर डूइंग ऑलवेज, if we are creating object of derived class, accessing data from derived class also and base class also। अभी यहाँ derived class ही एब्स्ट्रैक्ट बन रहे, तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएंगे? ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है, अगर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा देखो क्या बोलते हो, थोड़ा सा डेंजरस ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज कर रहे हो तो उसका इंप्लीमेंटेशन आपको अलग से आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में करना पड़ेगा, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड मतलब नाम वही होगा, पैरामीटर वही होंगे, ठीक है, सिर्फ उसके अंदर के डिटेल्स क्या, उसके अंदर का कोड क्या होगा, दूसरा होगा। अगर आपने सेम कोड लिखा तो फिर से क्या हो जाएगा? आपका डिराइव्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। पिक्चर क्लियर हो गया गाइस? यस। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? प्लीज टेल मी फास्ट। आर यू गेटिंग मी वॉइस क्लियरली? Yes. Yes, sir. Okay. Tell me what is a abstract class? Simple है, एक लाइन में मैंने पहले बोल दिया था। Abstract class, okay, contain, okay, non-implementable functions which can be implemented in a derived class. That class is called as what? Abstract class. What is abstract class property? We cannot create characteristics. We can't create object of abstract class, right? Yes or no? But in abstract class can have multiple functions. Some functions are unimplemented and some functions are implemented. Second point, if we are talking about the pure virtual function, then that pure virtual function is also contained inside the abstract class only. जब भी कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो 100% हम यहाँ श्योर बोल सकते हैं कि that class is an abstract class. उसको abstract कीवर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक जगह मतलब और वही चीज आएगी, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते हैं और प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। पर प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक थोड़ा सा डेंजरस पार्ट में मैंने ऑलरेडी बताया कि इफ वी हैव अ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन इनसाइड द बेस क्लास एंड यू वांट टू एक्सेस दैट इनसाइड द डिराइव्ड क्लास,
So what we need to do, we need to override that class. Again we need to write some another code for that function, and we have to call that function using the object of the derived class. If you are not done this, so again your derived class will become a वो abstract बन जाएगा. Derived class become an abstract class. So another meaning is what, we can't create the object of abstract class. Its meaning is what, either if you are having base class or derived class, we can't create object of both classes. So if you don't want to create the object of both classes, what is another way? Either we need to rewrite the pure virtual function, or we need to create another class where your both classes are going to be inherited. Picture clear हो गया? Let me see some example. ठीक है, this is a small example, this is for only example purpose. Okay, now the class name is test. ठीक है, यहाँ आप क्या आएंगे, data members, then this is the public keyword, and this is my pure virtual function. And see, the pure virtual function always value with the 0, always. Why? Because see, while we are executing some functions, it will return some value. Okay, or it will return some string, it will return some character. Okay, instead of if you are returning, देखो इसको बॉडी है क्या, कुछ ऐसा फंक्शन आपने कभी देखा भी नहीं होगा. अगर ऐसा फंक्शन देखते हो तो यहाँ बोलेंगे दिस इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन. प्योर क्यों, इसका वैल्यू 0 है. ठीक है, आप जब भी शो फंक्शन कॉल करेंगे यू विल गेट द 0. ठीक है, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम ये शो फंक्शन दूसरे क्लास में यूज करना चाहेंगे तो उसको वहां अलग बॉडी लिखना पड़ेगा, ना कि 0 यूज करना है. ये सिर्फ बेस क्लास के लिए है, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया अभी. ठीक है, यहाँ ही लिमिटेड है, उसके आगे आपको इसको ओवरराइड करना. ओवरराइड का मीनिंग क्या होता है, सेम फंक्शन नेम, सेम पैरामीटर, सेम स्ट्रक्चर, जस्ट वी नीड टू राइट द अनदर कोड इनसाइड द क्लास, इनसाइड द फंक्शन, सॉरी. ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. अब ये तो सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए, सिंटैक्स एग्जांपल. नाउ एक्चुअल एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटिंग. नाउ दिस इज अ कंप्लीट एग्जांपल. नाउ दिस इज माय बेस क्लास. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, x पब्लिक वर्चुअल void fun. अब ये फंक्शन की वजह से, लाइन नंबर 13 की वजह से आपका ये जो बेस क्लास है ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया. क्या हो गया भाई, एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना, क्योंकि देखो इस फंक्शन में तो ये है, बॉडी है, इसका क्या बॉडी है, हमने रिटर्न x लिखा है, मतलब दिस फंक्शन इज हैविंग सम लाइन ऑफ कोड. यहाँ कर्ली ब्रेस है, मतलब यहाँ बॉडी आ गई है, ध्यान में रखो. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस लाइन योर बेस क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो यहाँ एक पक्का हो गया कि इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते. मैं वो भी लिख के देखूंगा ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग नाउ, दिस क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम द बेस क्लास implement func. Now next is what, derived class is a derived class, then inherited with the base class. यहाँ और एक वेरिएबल लिया है, y वेरिएबल, then public void fun cout fun called. अभी देखो यहाँ हमने ना बेस क्लास यूज किया है ना गेट फंक्शन कॉल किया है. दिस इज जस्ट एग्जांपल. और दूसरा एग्जांपल हमको क्या करना है आगे देखना, ये मैंने नीचे लिखा है. ठीक है, नाउ व्हेन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास एंड वी आर गोइंग टू कॉलिंग द फन फंक्शन, व्हाट शुड बी आउटपुट शुड बी कम, दिस शुड बी गेट इट. ठीक है, इसमें कुछ भी हमने देखो बेस फंक्शन का कुछ भी यूज नहीं किया है, ये ध्यान में रखो. सो लेट्स सी दिस एग्जांपल एंड विल आल्सो हैव आउटपुट. तो इसको मैं यहां न्यू क्लास बना देता हूं. क्लास का नाम क्या होगा, abstract.cpp. ठीक है, यहां मैंने उसको पेस्ट कर दिया. नाउ लेट्स हैव टू बिल्ड दिस कोड एंड वी कैन हैव द एग्जीक्यूशन. देखो क्या हो गया, फन कॉल्ड हो गया. अभी ये जो लाइन नंबर 8 दिख रहा है आपको, वर्चुअल वाइड फन, इसके वजह से ये क्लास क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट बन गया. लेट्स सी कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास. देखो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, देखो द टाइप बेस मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड प्योर फंक्शन प्योर वर्चुअल मेथड इन अ बेस फंक्शन. मतलब अगर आपको ये इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखा है ना, उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ना कि इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा. बात समझ में आ गई? यस गाइस,
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस प्लीज। आज बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, समझ में आ रहा है मुझे। सब हेडफोन डाल के बाजू बैठ गए क्या? सौरभ, प्रबल, अपूर्वा, साक्षात, आयुष, स्वरांजलि, यस सर। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Okay. Now let's move another quite tricky example. Let's see. Again, my class name is what? Shape. जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था वही मैं आपको बताऊंगा अभी। Now class name is what? Shape and this is a base class. देखो एक पब्लिक के अंदर मैंने यहाँ लिखा है प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखो प्योर इंट गेट एरिया, मतलब ये इंट मतलब कुछ तो वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ये ध्यान में रखो। यहाँ हमने क्या कर दिया, अभी एरिया की निकालने के लिए उसको कोई विड्थ, हाइट, लेंथ वगैरह कुछ तो चाहिए होगा, तो हमने यहाँ सेट कर दिया सेट विड्थ और सेट हाइट कर दिया, ताकि हम ये विड्थ और हाइट क्या करेंगे, यूज करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। और उसको हमने प्रोटेक्टेड कर दिया। प्रोटेक्टेड मतलब जिसके साथ ये क्लास इनहेरिटेड वही एक्सेस होगा, बाकी जगह एक्सेस नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। नाउ माय फर्स्ट डिराइव्ड क्लास इज व्हाट? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का ये क्या होता है फॉर्मूला? यस, हाइट इनटू विड्थ, बराबर है ना? तो अभी ये प्रोटेक्ट है, इसलिए ये सभी वेरिएबल एक्सेसिबल हो गए कहां? इस क्लास रेक्टेंगल। ये प्रोटेक्टेड है, हमें पहले बोला प्रोटेक्टेड मींस व्हाट? वेरेवर प्रोटेक्टेड कीवर्ड इज यूज्ड एंड वेरेवर योर क्लास इज गोइंग टू बी इनहेरिटेड, इन दैट क्लास दिस प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स डेटा मेंबर्स और फंक्शन इज डायरेक्टली एक्सेसिबल। यहां प्राइवेट होगा तो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, और पब्लिक होगा तो भी होगा। पब्लिक, शेप, गेट एरिया। जब भी हम रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, गेट एरिया इज व्हाट? माय वर्चुअल बेस क्लास, सॉरी वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन। हमने यहाँ इसको क्या किया है? ओवरराइड किया। देखो प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रोवाइडिंग इंटरफेस फ्रेमवर्क। इंटरफेस मतलब ये इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस मतलब क्या होता है? whenever we are not going to be implementing the function, that function is called is what? Interface functions or abstract functions or pure virtual function, ठीक है। now here we are implementing, देखो इसका सिंटैक्स देखो, इसका कोड देखो, ये कोड और ये कोड टोटल अलग है। अब ऐसे नहीं बोलो कि सर यहाँ भी विड्थ एंड हाइट लिखा है, यह डिवाइड बाय 2 किया, इसलिए ये लाइन पूरा चेंज हो गया इस लाइन के साथ, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन अलग होगा और इसका एग्जीक्यूशन अलग होगा। बट गेट एरिया क्या है हमारा? इट्स एन प्योर वर्चुअल फंक्शन दैट वी हैव इंप्लीमेंटेड इन अनदर क्लासेस विद द डिफरेंट कोड, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रेक्टेंगल क्लास है, ये मेरा सॉरी ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन हैविंग टू क्लासेस, बेस डिराइव्ड क्लासेस, रेक्टेंगल एंड अनदर ट्रायंगल। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है रेक्ट, ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट है ट्राई। तो रेक्टेंगल को पकड़ के हमने क्या किया है? सेट विड्थ की है, जो कि किसके क्लास, किसके, ये सेट विड्थ किसके फंक्शन है? बेस क्लास के फंक्शन है। देखो सेट विड्थ एंड सेट हाइट, ठीक है। अब यह हमने प्रिंट किया टोटल रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू रेक्ट डॉट गेट एरिया। क्या कितना मिलेगा आपको? 5 into 7 कितना मिलेगा? यस गाइस, टोटल रेक्टेंगल एरिया कितना मिलेगा आपको? 5 into 7 कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। हाँ 35। और टोटल ट्रायंगल एरिया यहाँ हमने फिर से 5 and 7 सेट किया है, किसके लिए? ट्रायंगल के लिए भी। तो यहाँ ट्रायंगल का कितना वैल्यू मिलेगा? यस, अब ये इंटीजर है दोनों, तो फ्रैक्शन के बाद का वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। सो 35 into 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिलेगा? यस 17, 18 कुछ तो मिलना चाहिए, राइट? समझ में आ गया? तो ये दो आउटपुट आपको सिर्फ मिलेंगे, यहाँ 35 मिलेगा और यहाँ 17 मिलेगा, ठीक है। लेट्स हैव टू एग्जीक्यूट दिस वन। ठीक है, कंपाइल तो हो गया। लेट्स सी द आउटपुट, ठीक है, आ गया रेक्टेंगुलर
एरिया 35 एंड रेक्टेंगल टोटल एरिया इज व्हाट, ट्रायंगल इज 70। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसको आप डबल में कन्वर्ट कर दो या फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, वो हो जाएगा। पिक्चर क्लियर गाइस? यस, देखता हूं यह इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है क्या है, डबल, लेट्स सी द आउटपुट। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां से डबल जा रहा है, पर जब हम ये कहा रिटर्न हो रहा है जहां हमने गेट फंक्शन लिखा है वहां, ये क्या रिटर्न कर रहा है, सॉरी ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, छोड़ दो। हो गया गाइस, समझ में आ गया व्हाट इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड वर्चुअल फंक्शन? यस, गॉट इट? यस और नो? ठीक है, तो मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया। देन विल मूव टू द नेस्टेड क्लास। ओके, बट लास्ट के जो 4 ऑप्शंस, 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, व्हाट आर दीस 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? फर्स्ट, अ क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट इफ इट हैज एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। जैसे हमने यहाँ लिखा है, अगर उसमें एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, एटलीस्ट बोला उन्होंने, ठीक है, कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन होगा तो क्लास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। ये तो हमको पता ही ऑलरेडी। ठीक है, वी कैन हैव पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप, मतलब हम क्लास का पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। कहाँ? डिराइव्ड क्लास में। ये पॉसिबल है। देखो, इफ यू डू नॉट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन ए डिराइव्ड क्लास, देन डिराइव्ड क्लास आल्सो बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि हमने यहाँ लिखा है ऑलरेडी। देखो इधर लिखा है, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ? इफ योर प्योर वर्चुअल फंक्शन we are not going to be overridden in a derived class, then your derived class also become a abstract class. लास्ट क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, मतलब वो पैरामीटराइज हो सकता है और वो यस डिफॉल्ट हो सकता है। अभी देखो यहाँ मुझे ये जो लास्ट का पॉइंट है थोड़ा सा गलत क्यों लग रहा है? गलत नहीं, एक्चुअली मुझे लग रहा है। क्यों? अगर हम आप यहां बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, और मुझे बताओ कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? यस, when we can create the constructor, sorry, we can call the constructor whenever we are calling the object of that class, creating object of that class. यहां तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? यस, थ्रू दिस पॉइंट नंबर 2, पॉइंटर्स एंड द रेफरेंसेस। मैंने क्या बोला कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम दूसरे क्लास के साथ इनहेरिट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली कॉल होगा, क्योंकि हमने इस क्लास को, बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास के साथ क्या किया है? इनहेरिट किया है। आर यू गेटिंग गाइस? यस प्लीज, अंडरस्टूड ना? सो दीज आर द 4 फैक्ट्स। द फर्स्ट फैक्ट्स वी ऑलरेडी नो, सेकंड वी डोंट नो, दैट वी हैव बीन सीन नाउ, थर्ड इज आल्सो नो, एंड फोर्थ वी डोंट हैव। तो ये सेकंड और फोर्थ है जो हमने अभी नया कंसीडर किया है। पहले 2 तो पता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन एक होगा तो एब्स्ट्रैक्ट होगा। अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन को हमने डिराइव्ड क्लास में भी इंप्लीमेंट नहीं किया, यूज कर रहे हो पर इंप्लीमेंट नहीं किया, तो क्या होगा? वो क्लास में क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सभी। ऊपर का क्या हो गया? यस प्लीज, दिस इज अबाउट द pure virtual function. So let me send to you this. ठीक है, मैं सभी एक टाइम में सेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी आल्सो। ठीक है, एग्जाम में हर टाइम बहुत बार पूछा गया है, इसमें बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट सी व्हाट इज अ नेस्टेड क्लास। नेस्टेड तो पता है आपको, व्हाट इज अ नेस्टेड? नेस्टेड इफ क्या है? यस, नेस्टेड इफ क्या है? What is a nested? Inside if block there is another if block. Yes, one if inside the another if, that is called the nested. अगर nested while loop बोलूंगा तो one while loop inside the another while loop. अगर nested for loop बोलूंगा तो
वन फॉर लूप इनसाइड द अनदर फॉर लूप। जो बाहर का फॉर लूप है उसको बोलेंगे आउटर लूप, और जो अंदर का फॉर लूप है इसको बोलेंगे इनर फॉर लूप। ठीक है ना। आपका जो इनर फॉर लूप है वो टोटली डिपेंड होता है आउटर फॉर लूप की जगह। ठीक है। अभी यहाँ ये ट्रिकी कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ ना कोई डिसीजन मेकिंग है, यहाँ डायरेक्टली क्लास ही होल क्लास जिसके अंदर बाकी का कोड रहता है। ठीक है। तो यहाँ ट्रिकी कंसेप्ट ये आ रहा है कि इसके वजह से, क्योंकि हम उसको क्लास को नेस्टेड कर रहे हैं। अभी एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर जाएगा तो किस क्लास कौन से क्लास को एक्सेस कर सकता है। और आउटर माय क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी एक्सेस आउटर साइड क्लास डेटा इनसाइड द इनर क्लास, और inner side class data can be accessible outside class. These two questions are coming in my mind. We'll discuss on that two questions. तो ये क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है। कैन वी एक्सेस आउटर क्लास डेटा और फंक्शन इनटू इनर क्लास। ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा कंसर्न उल्टा लिखता हूं इसके। ठीक है। Can we access inner class data or function into outer class? ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। इसके पहले मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा, और ये दो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल गया तो मैं समझूंगा कि आपको नेस्टेड क्लास समझ में आएगा। ठीक है। व्हाट इज नेस्टेड क्लास? अ नेस्टेड क्लास इज अ क्लास व्हिच इज डिक्लेयर्ड इन अनदर इंक्लूजिंग क्लास। अनदर मतलब सेम, जैसे एक आउटर क्लास है वो इंक्लूजिंग क्लास होगा जिसके अंदर हमारा क्या होगा, नेस्टेड क्लास होगा। ये ध्यान में रखो। तो आउटर क्लास हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्लूजिंग क्लास। ओके। ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है इंक्लूजिंग, सिर्फ ये लिखा है। दूसरी जगह दूसरा रैपर क्लास भी हो सकता है। ठीक है। नाउ अ नेस्टेड क्लास, देखो यहां ही आपको आंसर मिल रहा है पहले दो क्वेश्चंस का। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट, सॉरी व्हाट इज आंसर। अ नेस्टेड क्लास इज अ मेंबर, एंड नेस्टेड क्लास मतलब अंदर वाला क्लास है, पहले बोल रहा हूं मैं। Such as has a same access rights, okay, as they of any other member। मतलब जो अंदर का जो क्लास है नेस्टेड क्लास, उसको सभी एक्सेस है जो कि अदर मेंबर को भी एक्सेस है। समझ में आ रहा है कुछ? यस प्लीज। ये जो नेस्टेड क्लास है अंदर का क्लास, वो उसको सभी राइट्स है जो कि क्या कर सकता है। वो जो आउटर क्लास है उसके प्राइवेट भी मेंबर हो सकते हो, पब्लिक हो सकते हो, प्रोटेक्टेड हो सकते हो, चाहे फंक्शन हो, वो किस में यूज कर सकता है, वो नेस्टेड क्लास के अंदर यूज कर सकता है। अभी देखो ये पहले का आंसर तो मिल गया। व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? कैन वी एक्सेस आउटर क्लास डेटा और फंक्शन इनटू इनर क्लास? यस। इसका आंसर यहां मिल गया। आंसर है अ नेस्टेड क्लास इज अ मेंबर ऑफ, ये जो नेस्टेड क्लास है ना अंदर वाला क्लास, ये मेंबर किसका है, आउटर क्लास का। तो जब मेंबर होता है तो मेंबर को सभी राइट्स होते हैं, एक्सेस करो, चाहे मॉडिफाई करो, चाहे एडिट करो, कुछ भी करो। नाउ उल्टा थोड़ा सा, अ मेंबर ऑफ इंक्लूजिंग क्लास। इंक्लूजिव मतलब आउटर क्लास। पहले आउटर क्लास का डेटा इनसाइड क्लास वाला एक्सेस कर सकता था, अभी उल्टा। अभी उल्टा मतलब नेस्टेड क्लास, सॉरी इंक्लूजिव क्लास कैन एक्सेस data of inner class. Let's see the answer. The member of including class मतलब outer class have no special access, मतलब देखो उसको एक्सेस नहीं है तो मेंबर ऑफ द नेस्टेड क्लास। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले बोला था कि अगर आपका जो क्लास है उसके अंदर अगर प्राइवेट डेटा है तो वो प्राइवेट डेटा उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? द यूजुअल एक्सेस रूल्स शैल बी ओबेड, मतलब जो नॉर्मल एक्सेस रूल्स है वही फॉलोड होंगे, ना कि कोई स्पेशल एक्सेस देना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर हो गया? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ बता दूं। ये मेरा क्लास इंक्लूजिव क्लास है, मैं आपको वही इसी भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में। ये मेरा क्लास है इंक्लूजिव। ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने लिखा सपोज इंटीजर एक्स, ठीक है, और अभी ये एक्स क्या है, मेरा प्राइवेट है। ठीक है। आप अंदर का क्लास प्राइवेट बनाओ पब्लिक बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको सभी जगह एक्सेस है। तो मैं यहां लिखूंगा क्लास व्हाट नेस्टेड क्लास।
इस क्लास का नाम क्या है, नेस्टेड है। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ आएगा पब्लिक, ठीक है, मैं ये लिखता हूँ वाइड नेक्स्ट फंक्शन लिखा मैंने यहाँ कुछ तो बॉडी लिखा उसके लिए, ये मेरा हो गया क्लास खत्म, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूंगा अभी क्या, पब्लिक यस गेट एक्स, मतलब जो ऊपर हमने एक्स से डिक्लेयर किया है उसको हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। सॉरी, यहाँ लिखेंगे रिटर्न, लिखेंगे इंटीजर, और यहाँ क्या लिखेंगे, रिटर्न एक्स सेमीकोलन, देन दिस इज माय आउटर क्लास क्लोज, ठीक है। ये क्या है मेरा आउटर क्लास, सबको दिख रहा है ना, यस प्लीज, ये मेरा इनर क्लास। अभी जो हमने सभी क्वेश्चन के आंसर देखे और क्वेश्चन देखे, मुझे बताओ ये जो x है, आर यू गेटिंग माय वॉइस, यस प्लीज, Yes, sir. ओके। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, कैन आई एक्सेस दिस x इनसाइड द नेस्टेड क्लास, Yes, sir. यस, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, इफ द नेस्टेड क्लास ओके इज अ मेंबर ऑफ विच क्लास, एनक्लोजिंग क्लास। ये देखो ये पूरा क्लास किसका मेंबर है, इस एनक्लोजिंग का है। तो इस एनक्लोजिंग क्लास के अंदर जो भी डेटा होगा, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो, वो किस में एक्सेस होगा, ये नेस्टेड क्लास में एक्सेस होगा, ठीक है ना। अभी उल्टा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दूसरा क्वेश्चन इज व्हाट, कैन वी एक्सेस दिस y इनसाइड द एनक्लोजिंग क्लास, yes please, can we access, this is a question, can we access this y inside the enclosing class, it is possible or not, yes please, अरे पहले बता दिया ना भाई, ये चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, ये बाहर नहीं जाने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो नेस्टेड क्लास है ये एक सेपरेट क्लास है। इसका मीनिंग ये नहीं बाबा कि ये मेंबर है तो ये भी एक्सेसिबल होगा। यहाँ इसका देखो ना यार, तुम भी क्या, व्हाट इज दिस लाइन, द मेंबर ऑफ एनक्लोजिंग क्लास हैव नो स्पेशल परमिशन, मतलब ये जो एनक्लोजिंग क्लास है, ये इसको कोई भी स्पेशल परमिशन नहीं है कि वो नेस्टेड के क्लास के अंदर का डेटा एक्सेस कर सके। बट this class can access this data because this is a member of class, this y is not a member of enclosing class, this is a member of nested class। मैंने क्या बोला कि ये जो y है ये सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होगा, क्यों, क्योंकि ये इस क्लास का मेंबर है, ना कि इस क्लास का मेंबर है। अभी पहले वाला देखेंगे, ये क्लास किसका मेंबर है, एनक्लोजिंग क्लास का मेंबर है। ये नेस्टेड किसका मेंबर है, ये भी एनक्लोजिंग क्लास का मेंबर है। तो ये नेस्टेड क्या कर सकता है, x को एक्सेस कर सकता है, ये ध्यान में रखो। अब पिक्चर क्लियर हो गया, यस प्लीज, ठीक है। एग्जांपल दिखाता हूं मैं, देखो एक सिंपल एग्जांपल है, दिस इज माय अगेन इंक्लूजिंग क्लास, यह प्राइवेट इंटीजर x लिखा है, ठीक है। ये हो गया इतना ही। इसके अंदर देखो स्टार्ट ऑफ नेस्टेड क्लास डिक्लेरेशन, यह हो गया स्टार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास, नेस्टेड क्लास। यहां आ गया फंक्शन, सॉरी y, एंड देन नेस्टेड एनक्लोजिंग। यहाँ क्या क्या देखो, एनक्लोजिंग का ऑब्जेक्ट बना है, क्योंकि हम ये x मुझे एक्सेस करना है, इसलिए यहाँ इतना ही किया है बस। आपको डायरेक्टली x भी लिख सकते हो, दिस इज कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर कंसेप्ट दैट हैव बीन यूज्ड, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल, इसको रन नहीं करना है अपने को। लेट्स चेक व्हाट इज द एग्जीक्यूशन। सो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एनक्लोजिंग क्लास का, ठीक है। ये नेस्टेड फंक्शन किसका है, इस नेस्ट क्लास का है। तो आपको ये नेस्टेड फंक्शन कॉल करने के लिए आपको पहले ही नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आपको ये एनक्लोजिंग का एक्स इधर एक्सेस करना है तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो इसका आउटपुट लिखने के लिए कोड क्या होगा, कौन बताएगा, एनक्लोजिंग en, बस इतना ही है। क्यों इतना ही है, क्योंकि इसके अंदर कोई फंक्शन है ही नहीं जिसको हम एक्सेस कर सके एनक्लोजिंग के अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट हमने किसके लिए बना दिया, इसके लिए, इसके पैरामीटर पास करने, इसीलिए, ठीक है। तो अभी ये एक यहां मैं कोड लिखता हूं जो कि मैं क्या कर सकूंगा, x को डेटा असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो यहां लिखूंगा void
सेट एक्स, तो यह मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर एक्स। क्यों लिख रहा हूं मैं, एक्स का वैल्यू सेट करने के लिए। सो एक्स, सॉरी यहाँ लिखूंगा, सॉरी दूसरा नाम लिखता हूँ, आपको फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्स इक्वल टू एक्स एक्स, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग वैल्यू दी। अगर सेम नेम देना है तो आपको यहाँ दिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, NEST, ठीक है, सेमीकोलन NEST डॉट व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, नेस्टेड फन, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एम्परसैंड EN, वहां ऊपर लिखा है तो हमको यहाँ नीचे क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ EN, ठीक है। मैं ये कोड आपको क्लास के अंदर मतलब इक्लिप्स के अंदर ही लिख के दूंगा, ताकि जब डेटा मेंबर शो होंगे तो आपको पता चलेगा एक्सेसिबल है या नहीं है। यहाँ किधर गया, नेस्टेड क्लास, ठीक है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट नेस्टेड का नहीं बना सकते हम, ठीक है। देखो यहाँ मैंने क्या किया, इसका एक एन शो का ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये देखो मैंने ये फंक्शन बना एन शो मतलब एनक्लोजिंग शो। इसके अंदर हमने x को भी पास करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x का वैल्यू असाइन कर देंगे। x का वैल्यू असाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक फंक्शन लिखना पड़ेगा void set x, तो क्या होगा, अपने को गार्बेज वैल्यू देगा वो, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ मैं इंटीजर x is डॉट x इक्वल टू x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये करंट x को वैल्यू असाइन करेगा, दिस इज लोकल वेरिएबल दिस x एंड दिस इज अ क्लास वेरिएबल, ठीक है। तो बिफोर कॉलिंग एन डॉट सेट x करेंगे, यहाँ हम 10 वैल्यू देंगे उसको, और यहाँ सेमीकोलन देंगे, ठीक है। पहले क्या होगा, एनक्लोजिंग एन कॉल होगा, सेट x कॉल होगा, ठीक है, उसको 10 वैल्यूशन करेगा, और लास्ट में हम एनशो कॉल करेंगे। एनशो के अंदर हमने किया क्या है, देखो एक ऑब्जेक्ट बनाया एनकोडिंग का, एक नेस्टेड का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने नेस्टेड का कॉल किया, क्योंकि क्लास के अंदर ही हो सकता है, ये क्लास का मेंबर है ना, तो उसी क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाओ नेस्टेड फन, और उसको हमने एनक्लोजिंग का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ताकि हमें ये एक्स एक्सेस करना है, ये एक्स। अगर नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली लिखो। और फाइनली क्या होगा, इनसाइड द एनक्लोजिंग क्लास आउटपुट आएगा। आउटपुट कैसे आएगा, पहले सेट एक्स होगा, बाद में एनशो कॉल होगा, और ये पूरे स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद डेटा आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। हमने यहाँ ठीक है, यहाँ तो डिस्प्ले होगा ही, ठीक है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट, फर्स्ट एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट, क्या हो गया, व्हाट इज द इशू। अरे हाँ, ये इसको क्लोज करना भूल गए हम, क्योंकि एक टाइम दो मेन फंक्शन यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो आउटपुट क्या आ गया, 0 0 क्यों आ गया, हमने शायद कुछ तो गलत हो गया, ठीक है। ये 0 को छोड़ दो, ये हम बाद में देखेंगे क्या एक्चुअली ये 0 या 10 किधर चला गया पता नहीं, इस एड्रेस के वजह से कुछ तो चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ये निकाल ही देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए बोल रहा हूँ। लेट्स सी द आउटपुट, या स्लैश एन डाल देता हूँ, स्लैश एन, देखो ये आ गया गार्बेज वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट माय एनक्लोजिंग क्लास, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, यस प्लीज, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ओके। तो ये दूसरा एक और फंक्शन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, आप मेन लिख सकते हैं उसमें। देखो यहाँ क्या किया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसमें एरर है। व्हाट इज दैट एरर, विल एक्सप्लेन यू। नाउ दिस इज माय इंक्लूडिंग क्लास अगेन, दिस इज माय प्राइवेट मेंबर, दिस इज माय नेस्टेड क्लास, एंड दिस इज आल्सो प्राइवेट मेंबर ऑफ नेस्टेड क्लास।
declaring nested class and so on. Now what we are doing, we are writing a including function inside the including class, not inside the nested class. ऊपर हमने क्या लिखा था, ये nested function nested class के अंदर लिखा था. अब ये including function कहाँ लिख रहे हैं, including class के अंदर लिख रहे हैं. ठीक है, वहां हमने क्या कर दिया, nested का ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ nested वेरिएबल को कॉल किया. ये देखो nested, और ये y किसका है, ये nested का है. So what is given here, y is a private in a nested. मतलब अगर आपको एक्सेस करना है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा, then and then we can access. So this whole code gives you the yes compilation error on this line. Understood guys? Yes please, understood? Yes, sir. Okay, so these are the two concepts, okay, inside the polymorphism. क्योंकि ये related to function है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने लास्ट 2 लेक्चर में देखा है. आज हमने देखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन. ठीक है, उसके बाद देखा है नेस्टेड क्लास. नेस्टेड क्लास में 2 कंडीशन है. कैन वी एक्सेस द डेटा फ्रॉम आउटसाइडर टू इनसाइडर, आंसर इज यस. ओके, और दूसरा कैन वी एक्सेस डेटा फ्रॉम इनसाइडर टू आउटसाइडर, आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि वो पूरा क्लास अलग है और उस क्लास का मेंबर जहां किधर एक्सेस होंगे, उसी क्लास अंदर एक्सेस हो गए, ना के आउटसाइड. हाँ, अगर आपको एक्सेस करना ही है तो पब्लिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट वी आर ट्राइंग टू राइटिंग ऑलवेज अ कोड इनसाइड द प्राइवेट डेटा, नॉट द पब्लिक डेटा. ये रिकमेंडेशन है. जब भी हम कोई जावा का कोड लिखेंगे, .NET का लिखेंगे, पाइथन में तो नहीं होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लिखेंगे, वहां आपको डेटा डिक्लेयर करना है तो डेटा हमेशा प्राइवेट में ही डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, क्योंकि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये ध्यान में रखो. उसका लिमिटेशन क्या होता है, अगर प्राइवेट लिखा तो उसी क्लास तक लिमिटेशन रहता है, उस क्लास के एक्सेस बाहर उसको नहीं करना है. ओके गाइस, यस, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? यस प्लीज, एनी डाउट्स? ओके, so let's stop. Tomorrow we'll see the next part. Okay guys, bye, have a nice day. Bye bye.